First of all, I'm asking to the old students who already learned this chapter in the previous law. So that we are learning one topic that will be a last topic of the chapter scratch. What is the variable? What do you mean by variable? मैम वो एक लिस्ट होती है। लिस्ट होती है। और कुछ बता सकते हो आप मुझे वेरिएबल के बारे में? Anyone else? मैम वो एक कंटेनर टाइप होता है। Yes, it's container. What do you mean by container? Which contains something or any message. Means it will be save something. It means a saving or something. For example, you want to save any of the value, then you can use the variable in the scratch. जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं, हमें कोई वैल्यू x के अंदर स्टोर करनी हो तो वी आर टेकिंग अ वेरिएबल x and we will save the value in the x. Like a maths, there will be a one variable, one option will be came in the scratch to store the values. Variable is used to store the value in a scratch. So let's start the next topic. But can anyone can tell me what is the limitation of variable? It can display only one thing. Yes, it will be at a time. उसके अंदर हम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. We can only store one value at a time. We all know what is the variable, what is the use of the variable. We are using a variable to store a. Okay, so sorry for that. I'm just leaving the meeting due to some network issue. Again, I'm going to share my screen to you. So this is the screen variable. What is the variable? It is used to store any of the value. Limitation of variable is variable can store only one value at a time. आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हो. बट फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसी लिस्ट बना रहे हो, आपको कुछ और बनाना हो जिसके लिए आपको एक टाइम पे बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करना हो. जैसे कि आपका ग्रेड है, I want to store the name of the students at a time. मुझे सारे स्टूडेंट के नेम एक साथ स्टोर करने हैं. What should I do at that time? I have to be Use the list. Yes, I have to be use the next one, that is the variable list. So there's a using a variable list. Variable, as you know, variable are created to store the values. Add the thing, these are the different list options. Whenever you create any of the list, add the thing, delete, insert and replace. We are learning four things about the variable list. First, adding the thing, it is used to add item at the end of the list. हम at the end उसको add कर सकते हैं direct end में. We are not adding that thing at the first one or the between them. Delete one of stationery. What is the meaning of one? आपने कोई for example stationery में मैं आपका नाम लिख रही हूँ, sorry, in the variable list I'm writing your name. मैंने आपका नाम लिखा है तो आपका नाम डिलीट करने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ेगा. In place of one you are writing your name. I will be show the whole the thing, कैसे करना है, क्या उसका आउटपुट आएगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगी. बट फर्स्ट we are reading this thing, then we are going for the practical. It is used to delete the specified items from the list. Insert one at one of stationery. Here first one is the name. फर्स्ट क्या है? नेम है. आपको जो इंसर्ट करना होगा वो आप वहां पे लिखोगे. और सेकंड है पोजीशन. आपने लिस्ट 10 लिस्ट बनाई है तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है, सेकंड पोजीशन पे ऐड करना है, थर्ड पोजीशन पे ऐड करना है. तो इसके लिए आप यूज करोगे इंसर्ट वन एट वन. दिस इज द नेम ऑफ द लिस्ट. आप स्टेशनरी जो देख रहे हो दैट इज द नेम ऑफ द लिस्ट. रिप्लेस वन ऑफ स्टेशनरी विथ वन.
यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे लिस्ट का नाम है, वहां पे जहां पे भी वन आपको दिखेगा पूरे लिस्ट में उसको रिप्लेस कर देगा दूसरे नेम से. दिस यू कैन यूज अ डिफरेंट नेम. Using variable list to overcome the limitation of variable scratch provide us with the list which can allow us to store multiple values which can be referenced by its serial number. सबके पास डिफरेंट डिफरेंट सीरियल नंबर भी होगा, जैसे कि हमारे पास रोल नंबर होता है, आपके पास रोल नंबर होता है, तो हम आपको रोल नंबर के थ्रू, अगर हमें आपका नाम नहीं आता तो हम ऐसे बोलेंगे रोल नंबर 605, roll number 608, then they will be come. So like that there have also a particular value that is called the serial number and it's a by default. वो scratch जो सॉफ्टवेयर होता है वो वहां से ही आता है, उसको आपको पर्टिकुलर इसको डालना नहीं होता. So this is the demo of the list. सेम वेरिएबल जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही होता है, बस इसमें एडवांस फीचर होंगे, हम एक ही वेरिएबल लिस्ट में बहुत सारी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, बट वेरिएबल में ओनली वन वैल्यू विल बी एडेड. So what will be the output whenever you are creating? After creating a new list, it is displayed on this stage. You can hide it from the stage by unchecking it. I will show that. You can add the item list by checking the plus sign. अगर आपको ज्यादा ऐड करना हो, डायरेक्ट ऐड करना हो, ब्लॉक्स का यूज नहीं करना हो, तो उसके लिए आप प्लस साइन डायरेक्ट यूज करोगे. आफ्टर एडिंग the items in the stationery list, it will be look as shown. This is the one demo that will be show you in front of you. So let's see the demo. Okay, so first of all I'm going to opening the Scratch. Please mute yourself. Okay, so this is the opening screen of an Scratch and you can see also the demos here. So now, first of all, I will be show that how to create an variable list. So for that you have to, there will be a name option will be variable. You have to click on that. There will be option that make a variable जो हमने class 5 में सीख लिया था इसको. Class 5 में हमने variable भी बना दिया था. Now we are going to learn a list. In a variable, you only store a one value at a time. In the list, you can store multiple values at a time. आप ज्यादा value add कर सकते हो. So first is the make a variable, and this will be second option, that is the make a list. Whenever I click on that, you can see that new list name. So I'm writing that grade 6. हम हमारी क्लास की लिस्ट बनाने वाले हैं फॉर ऑल द स्प्लिट और द फॉर दिस स्प्लिट. अगर आपको ये सारे स्प्लिट में ऐड करने हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करोगे, अदरवाइज यू कैन चूज द सेकंड ऑप्शन. दैट इज डिपेंड ऑन यू, आपको क्या ऑप्शन चूज करना है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, whenever you are going to create, it will be in front of you. आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट बन के आ गई. अभी तक हमने उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया तो उसमें एम्प्टी दिखा रहा है. So first we are going to add the thing. So this is the add. You can write down the name. I'm taking the old roll numbers that I remember. मुझे जो पुराने नंबर याद है मैं वो ही ऐड कर रही हूँ. First add Ayush. So it will be add Ayush here. Second, again I'm taking a thing. Second, if I want to add second roll number is the Aditi, so it will be add here. तो आप देख सकते हो वो particularly add हो रहा है. Third, if you want to add, who was the third number? I just forgot. Devyani, Dhyani. No, ma'am, Anvesha. Yes, Anvesha. Sorry, Anvesha. Okay, I just zoomed it so you can see the demo.
Then who was the next? Devanshi. Devanshi. Ma'am, Sorry. Okay. So what will be happen? आप यहाँ पे देख सकते हो सारे 2 बार ऐड हुआ है. Why? Just because whenever I'm joined it will be displayed all things together. वो सब एक साथ में ऐड हुए होंगे. So what should you have to do? You have to just click on that and उसको आपको different रख के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया है. और if you want to delete, for example यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया है. Now you want to delete it, so आपको यहाँ पे रखना है delete. Write down the Devanshi here, Control V, and just click on that. So it will be show the output here. It will be delete the first position. So for example, if you want to delete a 7th position here, so you can click on that. So 7th position will be delete here. You can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6. By mistake, I delete a first. So just ignore it. Then if you want to insert, आपको वापस से यहाँ पे मेरा first जो था आयुष उस वो delete हो गया. Now you want to add that at the first. अगर आप add का यूज करोगे तो वो क्या होगा, वो लास्ट में ही ऐड होगा, वो फर्स्ट ऐड नहीं होगा. तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा insert think at 1. तो think की जगह पे आप लिखोगे name आयुष at 1. This is the position. So whenever you click on that, you can see that Ayush will be add on the top. For example, I am changing the name. Anyone else name, please? Can anyone? किसी और का नाम है हम सेंटर में ऐड कर रहे हैं. So अभिनव will be possibility just because देवांशी के पहले वो आ सकता है. अभिनव. ओके, कौन सी प्लेस पे हम उसको ऐड करेंगे? देवांशी से पहले मींस 7th प्लेस पे. मैम यस, मैम वो सेकंड प्लेस पे आएगा. इट्स ओके, आई एम जस्ट शो यू द डेमो. अगर आपको उसको 2nd प्लेस पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे रब करके उसको 2nd लिखो तो वो 2nd प्लेस पे भी ऐड हो जाएगा. आप देख सकते हो यहाँ पे वो 2nd पे ऐड होगा. अगर 2 वेरिएबल हो तो क्या कर देगा? मतलब ऐसे ये ग्रेड वी है, ऐसे ग्रेड वी और ग्रेड 5 के 2 वेरिएबल हो सकते हैं. तो दोनों के अलग अलग होंगे ना. आपको वापस से दूसरी लिस्ट बनानी पड़ेगी उसके लिए. You have to make a new list for that. आप नई लिस्ट बनाओ, फिर आप जैसे नई लिस्ट बनाओगी तो उसके पास में यहाँ पे दूसरी लिस्ट डिस्प्ले होगी, फिर उसके अंदर लिस्ट के अंदर ऐड करो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट, replace item 1 means this is the place of grade means list name with thing. आपको नेम लिखना है. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे किसी और का नाम लिखना है ऑन द 8th प्लेस. 8th प्लेस पे आपको किसी और का नाम लिखना है. जैसे कि उर्जनी ने बोला था तो हम उसका नाम लिखेंगे उर्जनी एंड राइट डाउन द नेम हियर ऑन द 8th प्लेस. जो 8th प्लेस है वो अभिनव की जगह पे उर्जनी आ जाना चाहिए. whenever I click on that you can see that 8th place will be changed with अभिनव to उर्जनी. आप कोई भी इस तरह से चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ द आयुषी एंड रिप्लेस इट आयुष 5th place with will be say ध्यानी. तो उसकी जगह पे उसका नाम आ जाना चाहिए. सो यू कैन सी दैट 5th place will be changed with ध्यानी. So using of these blocks you can add the things, delete the things, insert the things and you can replace the place.
आप कोई भी जगह पे उसको रिप्लेस कर सकते हो। कोई भी प्लेस पे बीच में अगर आप भूल गए हो लिस्ट बनाते बनाते, अरे ये पहले आना था, ये बाद में आना था, तो आप क्या कर सकते हो, बीच में भी उसको ऐड कर सकते हो यूजिंग ऑफ दिस ब्लॉक। आप इस ब्लॉक का यूज करके उसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, whenever you create, आपने अभी अपनी लिस्ट बना दी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेंथ इज 9, मीन्स आपने 9 वेरिएबल्स को ऐड किया है, 9 लिस्ट आपने ऐड की है। देयर विल बी 9 थिंग्स इन द लिस्ट, यू कैन सी इन द स्टेज, दिस इज कॉल्ड द स्टेज। आप स्टेज पे पूरी देख सकते हो, पूरी लिस्ट आपने जो भी बनाया होगा वो सभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको आप मूव भी कर सकते हो। सेकंड, इफ यू वांट टू हाइड दिस लिस्ट, आपको ये लिस्ट बनाई तो है बट आपको इसको हाइड करनी है, देन यू कैन सी दैट विल बी चेक बॉक्स इन बिफोर द ग्रेड 6। आपका लिस्ट का जो नाम होगा उसके आगे एक चेक बॉक्स है, दिस इज कॉल्ड द चेक बॉक्स। ऐसे राइट टिक किया होता है उसको हम चेक बॉक्स बोलेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। So whenever you click on that, you can see that your list will be disappear from this stage. वो लिस्ट है, बनी हुई भी है, सब कुछ है, लेकिन वो स्टेज पे डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आपको उसको वापस से डिस्प्ले करवानी है, देन यू कैन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स अगेन। आप इस तरह से उसको डिलीट भी कर उसको हाइड कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड मोर थिंग, अगर आपको ब्लॉक्स का यूज करना नहीं है, आपको लास्ट में कुछ ऐड करना है 10 नंबर, सो यू कैन डायरेक्टली click on the plus sign and write down the name. So you can see that I will be at the last the 10th number and length will be changed to the 10. So this is a way to using the simple variable list and it's a too much simple, I think उसको बहुत अच्छे से use भी कर सकते हो। So anyone have a query in the make a list? How to make No, a list? ma'am. It's too much easy. So I will be give you a one task that is the on the page number 87 of the textbook. Please open the textbook. On the page number 87, there will be a task of learning by doing. There will be a task of learning by doing. Page number 87. Task is learning by doing. Create a list, integrated project, and add the items needed for the creating project. What do you mean by the integrated project? Anyone have an idea what is the meaning of integrated project? Yes, Ma'am, page number? 87. Integrated project. Anyone know that? What is the meaning of that? What do you mean by the integrated? Whenever you are using a technology, आप technology का use करके कुछ बनाना चाहते हो, any of the project, then it called the integrated project. Okay, so using of that आपको पता होना चाहिए, अगर हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई प्रोजेक्ट बनाना हो फ्रॉम टू ऑन एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी है, उसके अंदर आपको इंसर्ट का भी यूज करना है, डिलीट का भी यूज करना है। इफ पॉसिबल यूज ऑल्सो द रिप्लेस विथ। ओके, आप सारे ब्लॉक्स का यूज करके देखो आपका प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा, and ask me if you have any of the query in your scratch. मैम आपको सेंड करना है वो? हाँ, अभी पॉसिबल। ओके मैम। जिसके पास डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं है, दैट्स ओके, दे आर नॉट सेंडिंग मी दैट। जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, okay, so there will be an exercise for you. I just suggest you try it by yourself. अभी आप लिखोगे नहीं उसको, मैं थोड़ी देर बाद असाइनमेंट भेजूंगी ग्रुप में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी राइट डाउन दैट इन योर नोटबुक। सिंपल ही होंगे किस ब्लॉक का क्या यूज हो रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज में भी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो आपको नहीं लिखना नोटबुक में। जो चूज करेक्ट ऑप्शन है वो नोटबुक में नहीं लिखना। क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 ओनली दैट थिंग यू हैव टू बी राइट डाउन इन योर नोटबुक। किसका क्या यूज है बस वही यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो आपको वही सिंपली लिख देना है। एंड लैब एक्टिविटी दैट यू हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय योरसेल्फ। आपको लैब एक्टिविटी खुद से करनी है। यू हैव टू यूज अ वन ब्लॉक दैट इज द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कंपल्सरी। अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये फुल वाटरमेलन हाफ कैसे हुआ, तो उसके लिए आप यूज करोगे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का। मैं सिर्फ एक ही हिंट दूंगी आपको, इट्स टू मच इजी। और सेकंड है आप उसको मूव कर सकते हो रैंडम प्लेस। यू कैन मूव इट रैंडम प्लेस दैट विल बी अवेलेबल ऑन द मे बी इन द मोशन। ऑब्जेक्टिव्स ये है कि मैम तो उसके लिए मैंने एक फ्रूट निंजा की गेम बनाई है, वो सेंड कर दूंगा तो चलेगा? हाँ कर देना, कोई बात नहीं। मैम यस मैम जिसके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। हाँ उनको तो कंपल्सरी करना है, क्योंकि इसकी भी प्रैक्टिकल एग्जाम होनी है। तो जिसके पास नहीं है तो वो उनका कुछ अलग तरीके से हो गया, बाकी जिसके पास है उनको तो मुझे आउटपुट ही दिखाना पड़ेगा। एंड practical exam will be easy for them who have a desktop or laptop. Okay, so there will be a change size. There will be one option that go to random place. Yes. मैम वो टेक्स्ट में होगा, हाँ मोशंस में होगा वो ऑप्शन मैम। नहीं, मैं यहाँ पे ही देखा था, मैंने मोशन में ही देखा था, सेंसिंग में। हाँ मेरे वेरिएबल का गो टू में ना डाउन वाला दबाना है, गो टू में डाउन वाला दबाना है। गो टू में ना हमें नीचे ऑप्शंस मिलेंगे एक। गो टू का नहीं कर बोल रही हूँ मैं, मोशन में रैंडम प्लेस बोल रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग द मैम रैंडम वो वही आता है मैम मैम वही। हाँ बोलो। मैम ये- हमको ये ये रहा सर। वेरिएबल का आउटपुट देना है। हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम में तो डिफरेंट टास्क होंगे। मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी, 3 में से जो आपको इजी लगेगा वो आप करोगे फॉर लैपटॉप एंड कंप्यूटर। बाकी जिसके पास नहीं है उनके लिए मेरे पास दूसरी मेथड है, उनके लिए कुछ डिफरेंट होगा। मैम हाँ मैम प्रैक्टिकल एग्जाम कब है? आई विल बी टेल यू दैट।